Hello students, I hope you are doing very well. My dear students, in today's video we will study about the concept, sequence, series, progression. Okay, so now you are also familiar with sequence, the word sequence in class 10. First point is, what is sequence? What is sequence? Okay, तो a succession of numbers is called sequence. Sometimes class teacher आपको बोलते हैं arrange your notebook in sequence. Okay, we are taking your attendance sequence wise 1, 2, 3, 4 in order. Clear? So what is sequence? A succession of numbers. Succession of numbers means first number, second, then third, fourth, as you given. Okay, that is sequence. Now, if any sequence have any specific pattern, any specific quality, you can see उसमें कुछ specific ऐसा different है, means the what is the sequence which follow a specific pattern is called progression. Is called progression. Progression means you can say progress, जिसमें progress है either in increasing order or decreasing order, either in fraction, clear, either in ratio. तो ये सभी क्या कहलाते हैं? Progression. So dear student, what is sequence? Sequence means a succession of numbers. We have given continue numbers. Clear? But if the sequence which follow a specific pattern is called progression. For example, आपने class 10th में AP किया था, arithmetic progression. Okay? So ऐसे pattern में one is AP. Now we will discuss also GP in this chapter. तो जो specific pattern को follow करती हैं उनमें से sequence है AP and GP. AP and GP. Clear? Now अगर हमारे पास कोई sequence है तो वो two type से होगा, या तो finite होगा या infinite होगा. जैसे आपने AP का concept किया तो AP हमारा finite में है अभी. ओके, नाउ इनफाइनाइट का आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इन बीएससी बीटेक. ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस, बट नाउ इज ओनली वी हैव फाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस मीन दैट इज काउंटेबल. नाउ रियल सीक्वेंस आल्सो, जो सीक्वेंस है हमारे पास रियल भी होते हैं, मीन विच हैव रेंज एज रियल, जिसका रेंज रियल है, दैट इज real sequence. And the next is series. What is series? तो before start series मैं आपको बता देता हूँ, जो जब भी आप किसी टर्म को लिखते हैं, nth टर्म को, तो आपने AP में यूज किया था an. तो जरूरी नहीं आप an करें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं an in the form of function also. बट अगर हम हमारी सीक्वेंस जो गिवन है और उस सीक्वेंस में मैंने ऑपरेशन डाल दिया एडिशन का, तो अब ये बन गई सीरीज. क्या बन गई? ये सीरीज. तो इसमें एडिशन भी हो सकता है और इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. मीन्स अ सीक्वेंस विद डिफरेंस और एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड सीरीज. तो सीरीज भी डियर स्टूडेंट दो टाइप की होती है, वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. सीरीज कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. तो फाइनाइट से हम डील करेंगे अभी, और इनफाइनाइट आपका हायर क्लासेस में आएगा. क्लियर? नाउ डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज सीक्वेंस. सीक्वेंस इज द सक्सेशन ऑफ नंबर्स. आफ्टर दैट प्रोग्रेशन. व्हाट इज प्रोग्रेशन? अ सीक्वेंस व्हिच फॉलो ए स्पेसिफिक पैटर्न. For example, AP and GP. AP you are in class 10. For each sequence are two type, finite or infinite. Finite means countable, infinite uncountable. और sequence को हम किससे लिख सकते हैं? अगर उसका किसी टर्म को डिनोट करना है तो फर्स्ट टर्म इज ए,
आइदर A1, A2, A3 अप टू AN, ये nth टर्म है। nth को आप Tn से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट विद Tn, और An से भी लिख सकते हैं। और जिसका रेंज रियल होगा दैट इज रियल सीक्वेंस। एंड सीरीज क्या होगा, जब आपकी सीक्वेंस किसी सिंबल यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ एक्सप्रेशन में देंगे तो क्या बन जाएगी, सीरीज। सीरीज है ऑल्सो टू टाइप, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस विद nth term and also series. Now we have given some general terms an given, or we need to find its first 5 term. तो हमें पहली 5 term निकालनी है। तो ये देखिए, in first part nth is 2n minus 3 by 6, और n हम लेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैंने n को 1 लिया, तो a1 क्या आएगा, 2 into 1 minus 3 by 6, 2 minus 3 by 6 minus 1 by 6. Now n is 2, तो a2 क्या आएगा, 2 into 2 minus 3 by 6। देखिए मैंने n को 2 पुट किया, तो 4 minus 3 यानी 1 by 6। Now n is 3, तो a3 क्या आएगा, 2 into 3 minus 3 by 6 means 1 by 2. Now n is 4, so a4 क्या आएगा, 2 into 4 minus 3 by 6, 5 by 6. Now n is 5, so 2 into 5 minus 3 by 6, 10 minus 3 by 6 is 7 by 6. In this way you can find out first 5 term, 7 term, 8 term. Now second part is nth term is given minus 1 raised to power n minus 1 5n plus 1. So first of all n is 1. Minus 1 raised to power 0 5 to 25. Now n is 2. So minus 1 raised to power 1 5 raised to power 3 minus 125. Clear? Now n is 3. Minus 1 raised to power 3 minus 1, 3 minus 1 2, और यू नो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 4 6 to 5. Okay, so dear student, in this way you can find out next term also. Now nth term is first of all we will put n as 1, a1 plus b1, so minus a upon a plus b. Now 2, so minus 1 raised to power 2 a2 upon a square plus b square. Now n is 3. So dear student, in this way you can find out its first 5 term, 6 term, 7 term, whatever जो भी आपको निकालना है. Now next, now we have a1 and a2 as 2, means first term is 2, second term is 2, and nth term is given an minus 1 minus 1. और यहाँ कब करना है, जब n is greater than 2, और आपको इसका कोरस्पॉन्डिंग सीरीज निकालना है. सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म गिवन है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टर्म. तो n को 3 पुट किया हमने, तो यू नो 3 minus 1 2, a2 आ गया. अब a2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो 2 minus 1 1. सो हमारा a3 क्या आ गया 1. ओके,
नाउ हम इसको 4 लेंगे, a4 माइनस 1, तो a3 आ गया, और a3 हमने क्या निकाला है 1, इट मीन्स a4 क्या आ गया 0। नाउ अगर हम n को 5 लें, सो a5 इज 5 माइनस 1, यू नो इट इज 4, और a4 कितना निकाला अभी 0, सो a5 इज माइनस 1। क्लियर? तो इन दिस वे हमने सीक्वेंस बना दिया 2 2 1 0 माइनस 1। क्लियर? नाउ कोरस्पॉन्डिंग सीरीज में यू कैन ऐड देम 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1, और ये हमने इनफाइनाइट का एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर? तो आप इनफाइनाइट सीरीज का हो सकता है 1 2 पार्ट आ जाए 1 2, बट उसके साथ रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज ऑपरेशन है वो हायर क्लासेस में है। Now next is, now in next problem we need to find first 6 term, but यहाँ हमें कंडीशन दे दिया अगर आपकी ओड नंबर टर्म है तो आप इसमें निकालेंगे, इवन नंबर टर्म है तो यहाँ निकालेंगे। तो फर्स्ट 6 टर्म के लिए आप n को पुट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इनमें ओड है हमारे 1 3 5, तो इस केस के लिए हम n को 1 3 5 लेंगे, और इवन है अपने पास 2 4 6, तो यहाँ के लिए हम क्या लेंगे 2 4 6। सो डियर स्टूडेंट, a1 इज ओड यहाँ पुट करेंगे, 1 स्क्वायर इज 1, a3 इज ऑल्सो ओड, 3 स्क्वायर 9, 5 इज ऑल्सो ओड, 5 स्क्वायर 25। नाउ a2 इज इवन, तो इवन के केस में लेंगे आप 2 इंटू 2 4, 4 इज ऑल्सो इवन, 2 इंटू 4 8, 6 इज ऑल्सो इवन, 12। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट अंडर द डिवीजन पार्ट। डिवीजन पार्ट मीन कई बार एक ही स्टेटमेंट से आपको 2 पार्ट बना सकता है। सपोज nth को ऐसे भी लिख सकते थे n स्क्वायर एंड 2n, when n is even and n is odd. Clear? Now next problem is, now we have given nth term is an square plus bn plus c, second term is 3, fourth term is 13, seventh term is 113. Now we want to prove this. तो आप सबसे पहले यहाँ 2 पुट करेंगे, तो a2 क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, a2 is a into 2 square b into 2 plus c is equal to 3, यानी आपको सेकंड टर्म 3 गिवन था तो हम इक्वल टू 3 लेंगे, मीन्स 4a plus 2b plus c as 3, ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। नाउ आप n को क्या पुट करेंगे 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, सो a4 is a into 4 square, 4b plus c is 13, so 16a plus 4b plus c as 13। ये कौन सा इक्वेशन हो गया सेकंड। नाउ हम n को 7 लेंगे, तो 7 इज कितना है 130, सो 49a 7b plus c। तो नाउ डियर स्टूडेंट ये कौन सा इक्वेशन आ गया 3। अब आपको इनको सोल्व करना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट 2 को ले लें, और सब्ट्रैक्ट करना माइनस माइनस माइनस, माइनस 12a माइनस 2b माइनस 10, माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6a प्लस b इज 5। क्लियर? तो ये कौन सा इक्वेशन आ गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन, दिस इक्वेशन फोर्थ। अब हम सेकंड और थर्ड ले लेंगे, 16a plus 4b plus c 13, 49a plus c is equal to 113. So on subtracting
minus 33a minus 3b minus 110. Clear? Sorry, 100. Now माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, सो माइनस 1 से कीजिए। ये इक्वेशन नंबर 5। अब आप फोर्थ और फिफ्थ से किसका वैल्यू निकालेंगे? ए एंड बी का। ए और बी वैल्यू निकालेंगे तो बी का, ए और बी का जब निकल जाएगा तो आप किसी एक में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, देन फाइंड सी। In this way you can find out A, B and C, or putting all the value of A, B and C in this equation यहाँ पुट करेंगे। देन हमें क्या चाहिए? थ्राइस ऑफ A, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, then we can prove this. So dear student, today we have discussed about sequence, progression, series and some problems based on sequence, journal sequence. Now try to solve the exercise based on the video and stay home, stay safe. Thank you.